Good morning, all of you. Today we start the first lesson, sources of history. Now, see, all of you, in history, sources of history, there are three types of sources of histories are there: material sources, oral sources, and written sources are there. Now, material sources, which things are included in the material sources? In the material sources, there is a object like a monuments, then coins are there, places are there, sculptures are there. Now, there is a further things are also included in the material sources, that is buildings and places. Now, see, in the modern history, in that independence time, there is a British government is there. Before the independent, British government is there, and that government means that government build different types of buildings are there, then bridge are there, water supply system, then fountains, these things they build. And these buildings include the government office also, then residentials are there, then leader, then revolutionaries places are there. That all things are there. Among these monument, many buildings are intact इवन टुडे ऑल्सो, मतलब बहुत सारे बिल्डिंग्स आज भी है, लाइक CST स्टेशन. नाउ दिस छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन इज बिल्ड फ्रॉम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. देन केम हॉस्पिटल इज देयर. Different types of buildings are there, they build. And bridges, bridge also, overhead bridge also British government build. And we get from that how much times required to build this bridge, then who is a prince, who is a governor of that time. All this information we get from that buildings. Now, while visiting this site, we get information about the contemporary history, architecture, nature of the monument, and also economic condition of that particular time. मतलब उस टाइम कैसी पर्टिकुलर पीरियड, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, ये सब का हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है. Now, just as during visit to cellular jail in Andaman, we get information about the revolutionary work विदा सावरकर. मतलब जब हम सेल्युलर जेल को हम जब विजिट देते हैं, तो हम लोग को विदा सावरकर के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलती है. बाय विजिटिंग द मनी भवन इन द मुंबई और सेवाग्राम आश्रम एट द वर्धा, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गांधीयन. मतलब जब हम वर्धा के सेवाग्राम आश्रम को हम लोग विजिट करते हैं, तब हमें गांधी जी के टाइम का जो पीरियड है उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. नाउ, म्यूजियम एंड हिस्ट्री. फॉर द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री, वेरियस ऑब्जेक्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स एंड सच ऑर्डर अदर थिंग्स आर प्रिजर्व इन द म्यूजियम. मतलब म्यूजियम में ये सब चीज़ें क्यों रखते हैं? क्योंकि जब भी कोई दूसरे लोग, दूसरे जनरेशन के लोग हैं, उसको विज़िट करेंगे, तो उनको उस टाइम किस तरह का पेंटिंग था, फोटोग्राफी कैसे होता था, then which types of statues are there, that all things we get information from that museum. Now, at the age of at that Aga Khan Palace in Pune, we can see the different object document giving information about the life of Mahatma Gandhi. मतलब जो आगा खान का जो पैलेस है पूना में, उधर हमें महात्मा गांधी जी के लाइफ के ऊपर सब इंफॉर्मेशन मिलती है. Now, statue and memories. Now, during the pre-independence and the post-independent period, memorial of many personalities were erected in the form of statue. These statues are also important for the study of the modern history. मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में वो स्टैचू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें क्या मिलता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है. दिस वेरियस स्टैचू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्परेरी रूलर. मतलब उस टाइम का कौन रूलर था, इसके बारे में भी हमें सब इंफॉर्मेशन मिलता है. एंड व्हाट इज़ अ पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, उस पर्सन का पर्सनैलिटी कैसा था, उसका भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है. द डिस्प्ले ऑन द स्टैचू गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द फुल नेम. मतलब जो भी डिस्प्ले रखते हैं ना नीचे स्टैचू के, उसमें हमें फुल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंस एंड बायोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड ऑन विच डेट दैट पर्सन इज बर्थ means born, and on which date that person is died. That all information we get from that display. Now,
there is just a statue of Mahatma Jyotirao Phule, Lokmanya Tilak, Dr. Babasaheb Ambedkar. There are memories which erect in the memory of various event which like information. मतलब महात्मा गांधी जी के स्टैचू के ऊपर ज्योतिराव फुले, देन महात्मा ज्योतिराव फुले, देन ये लोकमान्य टिळक. From that person we get the information about their whole life. Now the second one is there, the written sources are there. The following except are included in the written sources. Which things are included in the written sources? Now we are going to learn. There is a newspaper is there, biographies are there, books, autography, then factory records, then foreign account, then periodic tables are there. Now first of all we see the newspaper and the periodical table. Newspaper provide us information about the contemporary event, along with it deal analysis of particular event. मतलब न्यूज़पेपर से हमें कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से टाइम पे, कौन कौन से प्लेस पे, कौन कौन से डेट पे हो गई है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर के ऊपर से मिलती है. नाउ पीपल इलिटरेट आर ऑल्सो पब्लिश. वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हैपनिंग ऑफ दैट पीरियड. इन द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड न्यूज़पेपर लाइक ज्ञानोदय, देन ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, देन दीनबंधु केसरी. दिस ऑल in newspapers are so important. We get the information about the revolutionary, and from that so many participate in the freedom fighting process. Now British policy regarding India and effect on India. ब्रिटिश का हमारे इंडिया में किस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है और उसका हमारे लाइफ के ऊपर कितना असर हो रहा है, ये सब चीज़ें तब वो फ्रीडम फाइटर्स क्या करते थे, न्यूज़पेपर से लोगों के पास पहुंचाते थे. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द न्यूज़पेपर वेयर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट बट ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन. मतलब वो सिर्फ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था न्यूज़पेपर से, तो सोशल रिफॉर्मेशन भी उससे क्या हो जाते थे, क्रिएट किए जाते थे. नाउ द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपळूणकर and Shatapatre written by the Lokhitwadi, that is also important because we get the information about the social reformation and which types of freedom fight is going on there. That all information we get from that Nibandhamala and that Shatapatre, which one is written by the Gopal Ganesh Agarkar. Now see there is another one thing is there, that map and drawing is there. Now map and drawing, from map and drawing we get the information about which place is there and how much area is means included. Now see, and from the drawing which types of costume they wear that time, that all the information we get from the drawing. Map is also regarded as an important source of history. The changing nature of the cities or particular location can be traced through the map. मतलब हम कोई भी प्लेस, अगर हम लोग को कोई भी प्लेस पे जाना है तो आप अगर गूगल पे डालते हो प्लेस का नाम, देन देर इज़ अ वन मैप इज़ देयर. दैट मैप, विद द हेल्प ऑफ दैट मैप वी डायरेक्टली गो ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस. द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट established during the British period. Through the scientific method of survey they have created the map of India. मतलब उस टाइम क्या किए थे, मैप बनाए गए थे इंडिया के. Now designed by the architecture prove important from the view of the study of architecture of building as well as the phases of development process. उस टाइम के phases of development process भी क्या हुए थे, मैप से दिखाए गए थे, ड्राइंग से दिखाए गए थे. Of the particular area, for example, the Department of Mumbai Port Trust has original plan of the Bombay Port. Information about the development of Bombay city can be understood through the plans draft by architecture ऑफ इंजीनियर. मतलब आर्किटेक्चर ऑफ इंजीनियर है ना, उन्होंने है ना इंडियन पोर्ट ट्रस्ट का है ना पूरा प्लानिंग किया था, डेवलपमेंट किया था, और वो किसके ऊपर हमें दिखता था, ऑब्वियसली मैप के ऊपर. नाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड वन बिल्डिंग, देन व्हाट हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली वी बिल्ड अ बिल्डिंग, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट द मैप. And from that map means architecture design the map, then there is a architecture design the buildings also, and he give the information how much area you have to cover. That all things we get information from the architecture. Now there is a oral sources is there. See in the oral sources which things are included. In the oral sources there is a folk songs are there, povada, then folk tales is there, narration, interviews are there, then fair jalsa, then inspirational songs, rhythmic prose are there.
Now, inspirational song. During the period of the freedom movement, various inspirational songs were composed. At the present, some these songs are available in the written form. मतलब हम लोग को जब इंडिपेंडेंट नहीं मिला, मतलब इंडिपेंडेंस हम लोग को नहीं मिला था, उस टाइम है ना, जो है ना, एक है ना इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स क्रिएट गए थे, तो वो सॉन्ग्स भी क्या है, अभी भी ओरल सोर्स में हम लोग क्या करते हैं, सुन सकते हैं. एंड वी ऑल्सो इंस्पायर फ्रॉम दैट सॉन्ग्स. नाउ through this inspirational song we get the information about the condition during the pre-independent period and also the spirit behind the freedom struggle could be understand. मतलब उससे हम लोग को उस टाइम किस तरह का व्यवहार इंडियन के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट करता था, और हमारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने किस तरह से ब्रिटिश का सामना किया, उस सब चीज़ों का हमें इंफॉर्मेशन वो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स में या पेट्रियोटिक सॉन्ग्स में मिलता है. नाउ पोवाड़ा. Povada is the source for the getting information about the historical event of the work as a person. There are the various povada composed the freedom struggle in 1857. बहुत सारे पोवाडाज लोगों ने क्या किए थे, क्रिएट किए थे. अभी क्यों करते थे ये क्रिएट, तो मालूम है आपको, जब कोई भी, अगर आपको देखो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भी बायोग्राफी है, अगर आपको वो गाने में बताएंगे तो आपके वो क्या होता है, मतलब जल्दी ध्यान में रहता है. और जब भी हम लोग पवाड़ा बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो सॉन्ग्स होते हैं ना उसको अदर रिदम दिया जाता है, एंड देयर इज अ लो एंड हाई नोट्स आर देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी ऑल्सो इंस्पायर एंड वी हाउ टू डू समथिंग फॉर आवर नेशन, दैट ऑल फीलिंग्स आर कम इन आवर माइंड. Now, various revolutionaries during the British rules, it is these povadas were used to create the motivational and spirit among the peoples. मतलब ये ना पोवाड़ा से ना लोगों के मन में एक स्पिरिट और इंस्पिरेशन जागृत किया जाता था. Apart from the freedom movement, the povadas were composed based on the work of the Satyashodhak Samaj for the awakening among the appos of the classes and संयुक्त महाराष्ट्र movement and such other events. मतलब संयुक्त महाराष्ट्र के मूवमेंट पे बहुत सारे पोवाडास गाए गए, और वो किसने गाए थे, तो अन्नाभाऊ साठे एंड देयर इज अमर सिंह. मतलब वो जो है ना दो शाहिर थे, उन्होंने ये पोवाडास गाए थे, और जो फ्रीडम फाइटर थे, मतलब संयुक्त महाराष्ट्र के जो मोमेंट्स में पार्टिसिपेशन करने वाले लोगों के लिए उन्होंने इंस्पिरेशन सॉन्ग्स बनाए थे. नाउ वीडियो ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज. नाउ वीडियो ऑडियो सोर्सेज मतलब क्या, लाइक अ CD and DVD is there. Now during the modern period, due to the development of technology, there was a development in the art of the photography than recording. Now films are there. मतलब क्या होता था, उस टाइम सिर्फ ना ओरल सोर्सेस ही मिलते थे, लेकिन अभी क्या होता था, वीडियो ऑडियो यूजुअल थिंग्स भी मिलने लगे, लाइक अ CD player is there, then there is a Vishas are there, that because of that science and technology we get these things in the market also. Now from that things we get proper knowledge about the history from the films. इसलिए देखो, there is a one recently one movie is come, तानाजी मालुसरे द वॉरियर. वो जो मूवी है देखो, उसमें क्या होता है, उस मूवी को देख के आपको आधा हिस्ट्री तो तुरंत समझ में आता है, और आपको अगर किसी ने ये ओरल सोर्स में बताया तो यू कैनॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, बट इफ़ यू सी दिस फिल्म about that particular person, then we get all the information. मतलब हम लोग को बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती है, बहुत कम इसमें क्या हो जाती है, समझ में आती है. Now there is a photographs are there. Photographs are visual sources of modern Indian history. With the discovery of art of the photography, photographs of various person, event, object, structure, place were clicked. Through these photographs we get information of person or event in the visual format. मतलब हम लोग उसके visual format में भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. Now there is a, in the case of medieval period, there are the painting available that depict the physical features of the person or visual description of the particular event, but authenticity of this painting is doubtful. Comparatively, photographs are considered to be the
more reliable. The photographs of the person give information of the physical feature, dressing style. मतलब फोटोग्राफ्स क्या होता था पहले, सिर्फ ओरल में ही उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता था रिटर्न टेक्स्ट बुक में. बट इफ देयर इज अ फोटोग्राफ इज प्रेजेंट ना, देन व्हाट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम इज देयर इन दैट पीरियड दैट person is wear, then which types of ornament they use in their daily life, they're all information, and which types of arms they follow, that all things we get information from that photograph of an event give the visual image of the event, where the photograph of an object or structure help in the understanding the nature. और हम लोग को उस आदमी का नेचर भी क्या हो जाता था, समझ में आता था. नाउ रिकॉर्डिंग, द डिस्कवरी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ द रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फोटोग्राफी. रिकॉर्डिंग इज form of the audio sources of history. During the modern time, the speech of the leaders or important personalities, songs etc are available in the form of recording. मतलब हमें अगर इंस्पिरेशन करना है तो बहुत सारे लीडर्स और जो फ्रीडम फाइटर है उनके इंस्पिरेशनल स्पीच क्या करते थे, हम लोग सुनते थे. देन वी ऑल्सो इंस्पायर फ्रॉम देम. वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर नेशन. दैट इज सो इम्पॉर्टेंट. नाउ they can be used as a source of history. For the example, national anthem Jana Gana Mana song by Rabindranath Tagore is also composed. Now Rabindranath Tagore, from that Rabindranath Tagore Jana Gana Mana song is there, we use as a national anthem is there. Now himself or the speech Subhash Chandra Bose can be used and audio sources for the study of history of modern India. मतलब ये सब sources हम लोग को history के बारे में क्या देते हैं, information देते हैं. Now films are there. Now films are considered as a unique discovery of the modern technology. देखो फिल्म्स में क्या हो जाता था, पहले सिर्फ फोटोग्राफीज यूज करते थे, देन ओरल सोर्सेस आर देयर, बट नाउ देयर इज अ films are there, that is films. From that films we understand the discovery of modern technology, and 20th century there was a great development in the technique of film making. और उसमें पहले कैसे होता था, बहुत कम टेक्निक्स यूज़ करते थे फिल्म मेकिंग में, लेकिन अभी जो फिल्म मेकिंग में बहुत सारे टेक्निक्स क्या होते हैं, यूज़ होते हैं. दादा साहेब फाड़के इन द 1913 देयर इज़ अ फाउंडेशन ऑफ द इंडियन फिल्म सिटी. दादा साहेब फाड़के ये सबसे पहले फिल्म सिटी के क्या थे, उद्गाते थे. मतलब उन्होंने 1913 को सबसे पहली फिल्म क्या की थी, क्रिएट की थी. नाउ फ्रॉम दैट फिल्म वी गेट सो मच इंफॉर्मेशन इन ऑडियो विजुअल थिंग्स. मतलब ऑडियो विजुअल थिंग्स में हमें क्या मिलता था, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता था. एंड इफ़ यू सी, इफ़ यू रीड द टेक्स्ट बुक एंड इफ़ यू सी द फिल्म ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, यू अंडरस्टैंड द फिल्म सो इजीली. मतलब फिल्म से आप लोग वो टॉपिक क्या हो जाते हैं, बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, मतलब लर्न कर सकते हो. लेकिन कभी कभी टेक्स्ट बुक में इतना अच्छा हमें समझ में नहीं आता है. नाउ विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ द दांडी यात्रा, सत्याग्रह, क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड द सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट आर अवेलेबल. मतलब ये सब चीज़ें, दांडी यात्रा भी फिल्म्स में ये क्रिएट किए, तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारा हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिल जाता है. थ्रू दिस फिल्म्स एंड इवेंट कुड बी सीन इन रियलिटी. और वो रियलिटी ऐसा लगता है कि हम लोग भी उसमें क्या है, पार्टिसिपेट किए हुए हैं, और हम लोग भी इस फ्रीडम फाइटिंग का एक क्या है, हिस्सा है. ऐसा हमें क्या हो जाता है, महसूस होता है. कंपेयर टू द एशियन एंड मेडिइवल पीरियड, द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, द सोर्सेस ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर फाउंड इन एविडेंस एंड वैरायटी. मतलब जैसे जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ने गए, वैसे वैसे उसमें क्या हुआ, बहुत सारा हमें अदर थिंग्स भी मिलने लगा, अदर नॉलेज भी मिलने लगा. द आर्कियोलॉजी सोर्सेस ऑफ पीरियड आर टू ग्रेट एक्सटेंट फाउंड इन बेटर स्टेट. दे आर मेनी रिटर्न सोर्सेज प्रिजर्व इन द आर्चिव. मतलब आर्कियोलॉजी में बहुत सारे क्या हुए थे, सोर्सेस हम लोगों ने क्या किए थे, रिटर्न सोर्सेस में हैं, तो हम लोग को आर्कियोलॉजी का बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है. बट वाइल रिफरिंग द रिटर्न सोर्सेज, द आइडियोलॉजी एंड ऑप्शन ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग पर्टिकुलर इवेंट नीड टू एग्जाम. मतलब जो भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते तो उसे हमें क्या करना चाहिए, एग्जाम. यू हैव टू सर्च द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज इफ यू नॉट सर्च द रीजन ना, देन दैट हिस्ट्री देर इज नो एनी मीन्स वैल्यू इज देयर. दैट्स वाई विच वन हिस्ट्री इज रिटन ना, देर इज ट्रूथ इज सो इम्पॉर्टेंट. मतलब सत्यता बहुत इंपॉर्टेंट है. देर इज अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज
थ्रू विच रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ये हिस्ट्री जो सत्य हिस्ट्री है वो अगर नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग पहुँचाएंगे तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंस नेक्स्ट जनरेशन को हिस्ट्री के बारे में मिल सकता है। अगर हम लोग को सत्यता मतलब उसके जो बिहाइंड में जो प्रॉपर रीज़न है, क्या हुआ है हिस्ट्री में, क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था, ये अगर मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग को उसमें क्या नहीं होता है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। And now the lesson is completed. All of you, there is a homework for you. You have to solve the whole exercise from this lesson. Okay, thank you.